ملک پاکستان کے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، ملک پاکستان کی نیوی کے لیے، رینجر کے لیے، ملک پاکستان کے سبھی حکومتی اداروں کے لیے، اور پاک خدا دعا کرنا امن سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ زندہ خدا ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر موجود ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، تو ہی سجدے عبادت کے لائق ہے۔ زندہ خدا کلام کے مسح کے لیے دعا کرتا ہوں کہ زندہ خدا اس مسح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، تو فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرتا تو یہاں موجود ہے۔ قادر مطلق خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلام کرنا تاکہ کلام کی برکت سبھی بہنوں بھائیوں کو ملے۔ رحم کر، مدد کر، دعا کو سن قبول کرے، یہ دعا تیرے اسی قادر جلالی اور وفادار ناس مانگنے آمین۔ ہمارے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے صفنیہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی چند آیتیں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ صفنیہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے خدا کا کلام، اور تھوڑی دیر ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر 2 مضمون ہیں ہمارے پاس، 10-12 منٹ اس میں لوں گا اور 10-12 منٹ دوسری تواریخ میں سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے۔ پڑھنے میں کوئی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس سرکش ناپاک ظالم شہر پر افسوس، اس شہر سرکش شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا۔ اور لکھا کہ اس کے شہر پر افسوس، اس نے کلام کو نہ سنا۔ جس جگہ پر خدا کا کلام نہیں سنا جاتا تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ گلیا شکوہ کرتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ خدا نے نینوہ شہر کے ساتھ بھی افسوس کیا، وہاں پر بھی بہت زیادہ بدی بڑھ رہی تھی، وہاں پر لوگ خدا کے کلام کو نہیں ماننے والے تھے، نبیوں کو ماننے والے نہیں تھے، لوگ اپنی عیش عشرت میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اس شہر پر افسوس، انہوں نے خداوند کے کلام کو نہ سنا، کیونکہ سب ناموں سے زیادہ عظمت خدا نے اپنے کلام کو دی ہے۔ لکھا ہے کہ تمہارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب نبیوں سے زیادہ معتبر ٹھہرا، وہ کلام جو روح اور سچائی سے بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو، خیالوں کو، ارادوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ زبور کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے ان کو چھڑاتا ہے اور ان کے گناہوں سے ان کو وہ رہائی دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہے جو انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، چال کو بدلتا ہے، رویے کو بدلتا ہے، کریکٹر کو بدلتا ہے، خیال کو بدلتا ہے، سانس کو بدلتا ہے، زندگی کو بدلتا ہے، ڈریس کو بدل دیتا ہے۔ جو ٹیڑھے انسان ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس شہر پر افسوس، انہوں نے خدا کے کلام کو نہ سنا۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اور لکھا ہے کہ وہ تربیت پذیر نہ ہوا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا، اس نے خداوند پر توکل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اپنے خداوند کی قربت کی آرزو نہ کی۔ اس کے عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں، اس کے عمرہ ان کے گرجنے والے ببر ہیں، اس کے قاضی بھیڑیے ہیں، اس کے قاضی لکھا ہے کہ بھیڑیے ہیں۔ خداوند کا کلام کسی انسان کی طرفداری نہیں کرتا۔ لکھا ہے قاضی اس کو کہا جاتا ہے جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، قاضی اس کو کہا جاتا ہے جو منصف ہوتا ہے، قاضی اس کو کہا جاتا ہے جو پریچ کرنے والے ہوتے ہیں، خداوند کی راہ کی تربیت دینے والے اور کلام کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، قاضی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پڑھے بیٹے آگے۔ جو شام کو نکلتے ہیں اور جو شام کو نکلتے ہیں صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے، اور لکھا کہ جو شام کو نکلتے ہیں صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے، اس کے
उसके नबी लामज़नी दगाबाज हैं। और लिखा है कि उसके नबी लामज़दा और दगाबाज हैं। उसके कहनों ने पाक को उसके कहनों ने पाक को नापाक ठहराया। नापाक ठहराया। उसके कहनों ने बात कहनों की है। ये कलाम बेटी इकरा का नहीं, हमारा नहीं, जितनी हमारी बहनें हैं उनका नहीं, स्कॉलरों का नहीं, बल्कि ये कलाम उस शख्सियत का है जिसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, और जिसने कहा कि जिंदगी का दरवाजा भी मैं हूँ, और जिसका वादा है कि जमीन और आसमान टल जाएगी लेकिन हमारे मुंह की बातें हरगिज़ कभी नहीं टलेगी। वो आज और कल और अब तक यक्स है। उनके भेड़िए शाम को निकलते हैं और लिखा है कि सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते। उन्होंने पाक चीजों को नापाक ठहराया। पढ़े बेटे आगे। और उन्होंने शरीयत को मरोड़ा है। और लिखा है कि कहनों ने शरीयत को मरोड़ा है। मैं नहीं कहता, बेटी नहीं कहती, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि कहनों ने शरीयत को मरोड़ दिया है। मेरे बहनों और भाइयों, आज जगह जगह चर्चों के अंदर लोग कलाम की प्रीच करते हैं। हमारे लोग लकीर के फकीर हैं। जैसे लकीर को देख लिया वैसे ही चल पड़े। हम गूंगे बुतों की मानत है, हमारे अंदर अकल नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का बंदा पौलुस अपने खतूत में लिखता है कि अब मसीह में हमारी अकल है, और कहता है कि हमारी अकल अपनी नहीं बल्कि उसकी अकल हमारे अंदर है। उसकी जब अकल हमारी जिंदगी में आती है, हमारे दिमाग में आती है, तो हमारी जिंदगी को, हमारे किरदार को, हमारे करैक्टर को बदल देती है। फर्ज किया कि हमारे गांव के अंदर शाम को सुबह को दूध वाले आते हैं दूध देने के लिए, जो अच्छा दूध देते हैं। हम दूसरे हमसायों को भी बताते हैं कि हमारी बहन, हमारे भाई, इस भाई से दूध लेने का दूध बहुत अच्छा है, खालिस। चाय जब हम बनाते हैं तो इस चाय के अंदर लज्जत होती है, बहुत अच्छी चाय है, इनका दूध अच्छा है। लेकिन जो सब सारी उम्र दूध पानी वाला इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको एक दिन भी अच्छा दूध मिल जाए तो वो कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया? इसलिए कि वो सारी उम्र पानी वाला दूध पीते रहते हैं। लेकिन जो हकीकी दूध पीते हैं उनके सामने एक जरा सा भी मिलावट वाला लाया जाए तो वो उनको तर्क करते हैं, क्योंकि जो खुदा के बेटे यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। खुदावंद का बंदा पतरस और यूहन्ना खुदावंद की खिदमत करते थे। वहां पर भी अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि कहनों ने, मजहबी हुक्मरानों ने शरीयत को तोड़ा और मरोड़ा और उनको हालात के अंदर ढक दिया। हालांकि वो किसी के खिलाफ काम नहीं करते थे, और ये वो यीशु के जी उठने की मनादी करते थे, और यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते थे कि यीशु मसीह ने यार की बेटी को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह ने नाइन शहर के बेवा के बेटे को जिंदा किया, और यीशु मसीह ने बदलगिरफ्तार लोगों को आजाद किया, और वो लोगों के मौज से उनके सामने बयान करते थे। और तब भी कहनों ने उनको पकड़कर हवालात में बंद कर दिया और उनको बताया कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना, क्योंकि जिस जगह पर रूह और सच्चाई से बात की जाती है तो सच्चाई कड़वी लगती है। एक भाई ने एक मर्तबा सवाल किया, उसने कहा मर्चों का मौसम नहीं था, उसने कहा कि मर्चें किस वक्त लगती है? मर्चां उस वक्त लग जाती है जब कोई सच्ची बात की जाती है, उसी दम मर्चें लग जाती है। मर्चों का मौसम नहीं, जब कोई सच्ची बात की जाती है तो अंदर अबलीस खराश करता है। अबलीस कहता है कि आपके साथ इसने बात की है, ये है असल मर्चे हकीकी, इनका कोई मौसम नहीं, ना गर्मी का ना सर्दी का। और लिखा कि उनके कहनों ने शरीयत को मरोड़ा। पढ़े बेटे आगे।
खुदावन जो सादक है खुदावन जो सादक है उसके अंदर है, उसके अंदर है। वो बेइंसाफी ना करेगा। और लिखा है कि खुदावन सादक है और वो बेइंसाफी ना करेगा, वो हर सुबह बिला नागा और वो हर सुबह बिना नागा अपनी अदालत जाहिर करता है। अपनी अदालत जाहिर करता है। लिखा कि वो हर सुबह और बिना नागा अपनी अदालत जाहिर करता है। अबलीस ने हमारी अदालत को खो लिया है। अबलीस हमें खुदावन की हजूरी में नहीं आने देता। वक्त 7 बजे का है कि मैंने 7 बजे खुदावन यीशु जी आपकी हजूरी में बैठकर दुआ करनी है, लेकिन उठना 9 बजे है, इसलिए कि घड़ी अच्छी नहीं, वक्त अच्छा नहीं। इब्सियों 5 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त की कदर करने की जरूरत है। ये जो वक्त मुझे और आपको मिला है, ये वक्त आसान तरीके से नहीं मिला, क्योंकि इब्सियों के खत में लिखा है कि गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नदानों की मानत नहीं बल्कि दिनाओं की मानत चलो। इसी सबब से नदान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि मर्जी क्या है। शुरू में से मेरे बहनों और भाइयों, जितने कहन थे राम के लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पर लटा दिया। 6 इंच के केल उसके हाथ में लगा दिए। क्यों लगा दिए? कि इसलिए कि वो सच्चाई से खुदावंद की खिदमत करता था। जब फकीर और फरीसी उसके पास सवाल कर रहे थे तो शागिर्दों ने बताया कि उस्ताद आपको ये फसाने की चाल है। और वो कहने लगे फकीर फरीसी कि हम क्या करें, कैसर को जजिया दे या न दे। उसको यीशु को पता था कि देना चाहिए। आज भी मुल्क पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान है, जो उसका हक है, उसको टैक्स देना चाहिए। अगर नहीं देते तो हम उसके मुजरिम हैं खुदावंद के। उस वक्त भी देते थे। और यीशु मसीह के पास जाकर उन्होंने सवाल किया और यीशु मसीह ने कहा कि लाओ तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा कि हमारे पास एक सिक्का है।